Good morning, students. So, in previous class, I told you about the Asti Utpatti, the number of Asti, the types of Asti, and Asti Sarpurus. That was very important because in the last year question paper, this year question paper, the question of the Med Sarpurus came. So, there are the probability of more that question of Asti Sarp will come this year. In further continuation of that, today we will study the Asti Chhay, Asti Vriddhi, and Asti Vahasrotas. So, Asti Chhay. So, regarding the Asti Chhay, what the Acharya Charak told, Acharya Charak told, the sloka is there, Kesh, Lom, Nak, Ishmashru, Diz, Pripatnam, Shrama, Geyam, Asti Chhay, Rupam, Sandhi, Saithalyam, Evacha. So, Kesh means Lom means the body hair, Nak means nail, Ishmashru, beard, Diz, Pripatnam, श्रमा तो दिस प्रपत्नम श्रमा मतलब प्रपत्नम मतलब फॉलिंग डाउन श्रमा मतलब टायर्डनेस गेयम अस्थि क्षय गेयम मतलब नोन एज अस्थि क्षय तो दीज सिम्टम्स आर नोन एज द सिम्टम्स ऑफ द अस्थि क्षय रूपम मतलब सिम्टम्स sandhi sathelyam evacha along with this there will be the looseness of the joints that is sandhi sathelyam evacha the sloka says kesh lom nak ishmashru Dij Pripatnam Shrama Geyam Asti Chay Rupam Sandhi Saithalyam Evacha. So it means there will be the falling of the hairs of the regions of the kesh, the hair, scalp hair, loam, body hair, nag, nails, ishmashru means beard and mustache. This Pripatnam, there will be the falling of the hairs of the beard, mustaches, the hair, the body hair, along with the nails. Shrama matlab tiredness. Gayam. Gayam means known as. Asti Chay Rupam. Rupa matlab symptoms. So above these are the symptoms known as the symptoms of the Asti Chaya. Sandhi Satylyam Evacha. Along with the above symptoms, there will be the looseness of the joints. Okay. Acharya Shishur told Asti Chay Asti Sulam Dant Nank Bhango Rocham Cha. So Asti Chay, in case of the Asti Chay, there will be Asti Sool. Asti Sool matlab pain in the bones. Dant Nak Bhango Rocham Cha. Dant Nak Bhango. Bhango matlab cracking. There will be the cracking in the teeth. There will be the cracking in the nails. Rocham Cha. And there will be the dryness in the body. So both these slokas are the very important. You can remember one of the two either by the charak or either by the shushruत. तो केश लोम नख इश्मश्रु once again I am repeating the sloka the asti chaya kesh lom nak ishmashru this pripatnam shrama geyam asti chaye rupam sandhi saithalyam evacha okay तो केस मतलब हेयर लोम मतलब बॉडी हेयर नख मीन्स नेल ishmashru means mustache and beard प्रपतनम मतलब फॉलिंग डाउन श्रमा मतलब टायर्डनेस गेयम मतलब नोन अस्थि क्षय मतलब डिसीज और द बीमारी रूपम मतलब सिम्टम्स संधि शैथिल्य मतलब लूजनेस ऑफ द joints so these are the symptoms of the asti chaya number 1 the case prapatnam that is the falling of the hair number second lom prapatnam falling of the body hair nakh prapatnam falling of the nail ishmashru prapatnam falling of the hair of the mustache and beard shrama matlab tiredness sandhi shaityalya that is the looseness of the joint. This is the description according to the Acharya Charak. Acharya Shishruta explained Asti Chay Asti Sulam Dant Nak Bhango Raksham Cha. So Asti Chay, in case of the Asti Chay, there will be the Asti Sul, that is the pain in the bones. Dant Nak Bhango, there will be the Dant Bhang, that is the cracks in the teeth. Nak Bhang, that is the cracks in the nails. Along with this, Raksham Cha. Raksham matlab dryness in the body. So these are the symptoms बाय द आचार्य चरक एंड आचार्य सुश्रुत तो कोई सा भी एक श्लोक जो आपको अच्छा लगे आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में 5 या 10 मार्क्स में आएगा अस्थि क्षय एवं अस्थि वृद्धि फर्दर इन कंटिन्यूशन ऑफ द अस्थि क्षय आचार्य भागवत टोल्ड अस्ति न्यस्ति तोदम सदनम दंत केस नखादिशु तो अस्ति न्यस्ति तोदम मतलब अस्ति तोदम तोद मतलब pricking pain there is a types of pain तोद मतलब pricking pain there will be the pricking pain in the bones sadanam sadanam मतलब
आपकी बॉडी में कुछ काम करने का मन नहीं करना। दंत केस नखादीशु, तो सदनम का मतलब एक तो कुछ काम करने का मन नहीं करना ये भी होता है, और यहाँ पे जो सदनम का मतलब है दैट इज फॉलिंग डाउन। तो सदनम, सदनम मतलब फॉलिंग डाउन। दंत केस नखादीशु, तो दंत सदनम मतलब फॉलिंग ऑफ द टीथ, केस सदनम दैट इज द फॉलिंग ऑफ द हेयर, नखादीशु और नख एटसेट्रा द फॉलिंग ऑफ द नेल्स एंड एटसेट्रा। तो अकॉर्डिंग टू द भागवत, he explained in the Stangirde Suristan 13th chapter, Asti Todam, there will be the pricking pain in the bones, Danta Sadanam, there will be the falling of the teeth, Case Sadanam, there will be the falling of the hair, Nakhadishu, the falling of the nails, etc. तो इसमें से तीन श्लोक में से जो श्लोक आपको अच्छा लगे वो आपको याद करना है, बट द मोस्ट कॉमन जो श्लोक जो जनरली बच्चे याद करते हैं दैट इज बाय द आचार्य चरक, केश लोम नख इश्मश्रु दिस प्रपत्नम श्रवा गेयम अस्ति क्षय रूपम संधि शैथिल्यम एवच। ओके, देन वी विल सी द अस्थि वृद्धि। तो अस्थि वृद्धि, देयर इज अ वन लाइन, अस्त अध्यस्थि अध्यस्थ्यरि निधि दंताश। इसका मतलब क्या है? अस्थि अध्यस्थि, अध्यस्थि मतलब एक्सेस ग्रोथ ऑफ द बोन्स। तो एक्सेस ग्रोथ ऑफ द बोन्स क्या हो सकता है? ऑस्टियोमाइलोमा। तो ऑस्टियोमाइलोमा एक कंडीशन है जिसमें बोन्स में कैंसर हो जाता है, जिसमें बोन्स में कैंसर का मतलब भी यही है क्या? एक्सेसिव एंड एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स। तो कैंसर में क्या होता है कि आपकी बॉडी की जो नॉर्मल सेल्स हैं वो जितनी नॉर्मल ग्रोथ होनी चाहिए उनकी अपेक्षा ज़्यादा एक्सेसिव एंड एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी सेल्स इज नोन एज कैंसर। तो अस्थि में क्या होगा? ये एक हड्डी का कैंसर है, बोन्स का कैंसर है। इसमें बोन्स की जो सेल्स हैं उनकी एक्सेसिव और एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है। तो इन आयुर्वेदा द टर्म इज अध्यस्थि। अध्यस्थि मतलब एक्सेसिव एंड एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन। दंताश्च, दंताश्च मतलब एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ टीथ। होता है ना कभी कभी कुछ लोगों के मुंह में एक साथ दो दांत रप्टेड होते हैं, तो दैट इज अधिदंताश्च। अधिदंत मतलब एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ टीथ, एक के साथ दूसरा दांत निकल आना, दैट इज अधिदंता। तो देर आर द टू टर्म, वन इज द अध्यस्थि, सेकंड इज दंता अधिदंत। तो अध्यस्थि मतलब excessive growth of bones that can be compared with the osteomyeloma, that is a type of a bone cancer. Second is the adidant, adidant matlab excessive growth of teeth. Acharya Bhagwat have explained asti adhyasthidi adidantascha. So the same as explained by the Acharya Shishrut, the same quotation is given by the Acharya Bhagwat in the Stangirde Sutristana. He told there will be the symptoms of the asti vradhi, there will be the adhyasthi adidanta. Adhyasthi matlab excessive growth of bone. Adidanta matlab excessive growth of teeth. So these are the two famous questions that come in the exam, asti क्षय एवं asti वृद्धि। तो अस्थि क्षय एवं अस्थि वृद्धि, ईच फ्रॉम द ईच क्वेश्चन यू हैव टू रिमेंबर द वन श्लोक। अस्थि वृद्धि में तो दो टर्म है, एक अध्यस्थि और एक अधिदंता। अध्यस्थि मतलब एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ बोन्स, अधिदंता मतलब एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द टीथ। इन रेफरेंस टू द अस्थि क्षय देयर इज अ श्लोक ऑफ केस लोम नख इश्मश्रु, दिस इज द वेरी फेमस श्लोक, सारे बच्चों को आता है। तो अस्थि क्षय का पहला वाला श्लोक, और अस्थि वृद्धि में सिर्फ दो शब्द, एक अध्यस्थि, सेकंड इज द अधिदंत। Next, we will see the Astivah Srotas. The Srotas is a very important question that come in the anatomy for long question 20 marks. Along with this, there are the chances that Srotas can come in the exam for 5 marks in the physiology. ओके, तो हमें सारे स्रोतस के बारे में एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले वाली क्लासों में बताया कि कोई सा भी स्रोतस एग्जाम में आएगा, देन यू हैव टू राइट दैट स्रोतस इन द 4 हेडिंग्स। नंबर 1 मूल, नंबर सेकंड अस्थि स्रोतो, अस्थि वह स्रोतस के दूषित होने के कारण, नंबर फोर्थ अस्थि व श्रुति दूषित लक्षण, एंड नंबर फोर्थ चिकित्सा। तो पहला मूल, दूसरा दूषित होने के कारण, तीसरा दूषित होने के लक्षण, एंड पांचवा चौथा चिकित्सा। ओके, तो लेट्स सी द अस्थि व स्रोतस का मूल। आचार्य चरक कहते हैं अस्थि वहानाम स्रोतसाम मेदो मूलम जगनम च। अस्थि वहानाम स्रोतसाम, अस्थि व स्रोतस के जो मूल हैं, मेदो मूलम जगनम च। तो अस्थि व स्रोतस के जो मूल मेदो मूलम जगनम च, अस्थि व स्रोतस के मूल मेद और जगनम, जगनम मतलब इलियक रीजन। तो अस्थि व स्रोतस के जो मूल हैं वो मेद और जगन, जगन मतलब इलियक रीजन। देन वी विल सी द अस्थि व स्रोतस के दूषित होने के कारण। देयर इज अ श्लोक से व्यायामाद अति संक्षोभात अस्तनाम अति विघटनाम अस्ति वाहिनी दुष्यंती
अस्थिवाहिनी दुष्यन्ति वातलानां च सेवनात् व्यायामात् अतिसंक्षोभात् अस्तनाम अति विघटनात्। तो व्यायामात अति संक्षोभात, तो व्यायाम मतलब एक्सेसिव एक्सरसाइज करने से, अति संक्षोभात अति संक्षोभात मतलब ज़्यादा बॉडी के ऑर्गन्स को हिलाने डुलाने से, अस्तनाम अति विघटनात्। और अस्तनाम अति विघटनात् मतलब अस्थियों के विघटन से। विघटन मतलब आपकी बॉडी से जो अस्थियां हैं वो डिक्रीज होने लगे। अस्थिवाहिनी दुष्यंती वातलाम न सेवनात्, अस्थिवा स्रोतस दूषित हो जाते हैं, वातलानाम च सेवनात्, वातवा आहार के सेवन से। तो व्यायामात, व्यायामात मतलब एक्सेसिव एक्सरसाइज। अति संक्षोभात मतलब एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ द बोन्स। अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें बोन्स के बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स हो रहे हैं। अति विघटनात् मतलब आपकी बॉडी का किसी ने कंप्रेस कर दिया, एक्सीडेंट हो गया, ट्रक का पहिया बोझ के ऊपर चल गया, तो ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें हड्डियों का विघटन हो जाए। अस्थि वाहिनी दुष्यंती, अस्थि व स्रोतस दूषित हो जाते हैं, वातलानाम च सेवनात्, और वातवर्धक आहार विहार के सेवन से। तो फर्स्ट वी हैव स्टडी दैट अस्थि व स्रोतस के मूल। तो अस्थि व स्रोतस के जो मूल है, मेदो मूलम जगनम च। तो अस्थि व स्रोतस के मूल मेद धातु और जगनम, जगनम का मतलब इलियक रीजन। इलियक क्या है? इलियक का पता है ना, हिप बोन का एक पार्ट है, दैट इज इलियक रीजन। देन अस्थि व स्रोतस के दूषित होने के कारण व्यायामाद, व्यायाम मतलब एक्सरसाइज, अति संक्षोभात मतलब एक्सेसिव मूवमेंट्स ऑफ द बोन, अति विघटनात् मतलब एक्सेसिव क्रशिंग ऑफ द बोन्स। देन अस्थि वाहिनी दुष्यंती, अस्थि व स्रोतस दूषित हो जाएंगे, वातलानाम च सेवनात्, वातवर्धक आहार विहार के सेवन से। Next, we will see the Asti Dosaj Vikar. So, Asti Dosaj Vikar, this slok is a very important. What the slok says, Adhyasti Dant Dantasti Bhed Sul Vivarnata Kes Lom Nak Ishmashru Kesh Lok Nak Ishmashru Doshas Cha Asti Pradosh Cha. What the slok say, अध्यस्ति, अध्यस्ति मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ, अध्यस्ति मतलब एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द बोन। दंत दंतास्ति, तो excessive growth of the teeth, excessive growth of the bone. Along with this, there will be the pain in bones, bhed, asti bhed sool vivarnata. So bhed sool vivarnata, these are the terms that will come for asti along with the dant. Asti bhed, dant bhed, asti sool, dant sool, asti vivarnata, dant vivarnata. So there will be the pricking pain in the bones, there will be the pricking pain in the teeth, there will be the discoloration of the color of the bones, there will be the discoloration of the color of the teeth. केश लोम नख इश्मश्रु दोषश्च अस्ति प्रदोष। along with this there will be the विवर्णता, विवर्णता मतलब discoloration, किसमें? केस लोम नख इश्मश्रु, दोष, दोष मतलब abnormal. So there will be the abnormal growth of the hair, there will be the abnormal growth of the body hair, there will be the abnormal growth of the hairs of the mustache and the beard. तो these are the दोष, दोष का मतलब abnormal growth. तो abnormal growth किस में? केश में, लोम में, नख में, श्मश्रु में। तो केश मतलब हेयर, लोम मतलब बॉडी हेयर, नख मतलब नेल, एंड श्मश्रु मतलब मुस्टैक एंड बेयर। तो देयर विल बी defect, or there will be the abnormal or pathology in the growth of the hairs, body hairs, nails and the beard and mustaches. तो these are the अस्थिवाह स्रोतस के दूषित होने के लक्षण। what the श्लोक says अध्यस्ति दंत दंतास्ति भेदसूल विवर्णता। तो अध्यस्ति मतलब एक्सेसिव ग्रोथ, एक्सेसिव एबनॉर्मल ग्रोथ, किसकी? दंत की और अस्थि की। तो there will be excessive abnormal growth of the bones along with the excessive abnormal growth of the teeth. There will be the asti bhed, asti stool, asti vivarnata. Asti bhed matlab the variation in the normal type of the asti or variation in the normal type of the teeth. Asti stool, there will be the pain in the bones, there will be the pain inside the teeth, and vivarnata, there will be the abnormal color of the bones or teeth other than the normal. Then केश लोम नख श्मश्रु दोष, there will be the kesh dosh, there will be the lom dosh, there will be the nakh dosh, there will be the shmashru dosh. Dosh मतलब abnormal or pathology. There will be the pathology in the body hairs, pathology in the scalp hair, pathology in the nails, and pathology in the beard or mustache hairs. So these are the symptoms of the astiva srotas विशेषण। तो अगर आपकी बॉडी में अस्थि व श्वास का विशेषण हो जाएगा तो दीज आर द सिम्टम्स। तो पहला हेडिंग जो हम एग्जाम में लिखते हैं,
अस्थि व स्रोतस के मूल। दूसरा हेडिंग अस्थि व स्रोतस के दूषित होने के कारण। तीसरा हेडिंग अस्थि व स्रोतस के दूषित होने के लक्षण। चौथा हेडिंग अस्थि व स्रोतस की चिकित्सा। तो अस्थि व स्रोतस की चिकित्सा क्या है? अस्थि व स्रोतस की चिकित्सा में लिखना है, इसमें बुक में नहीं लिखा है। मधुर एवं तिक्त रसों से सिद्ध, मधुर एवं तिक्त रसों से सिद्ध, औषधियों से सिद्ध दूध या घी का सेवन या दूध या घी से सिद्ध बस्तियों का प्रयोग। तो बस्ती इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर वात। और जब अस्थि में विकार आएगा, जैसे मैंने एक बार बताया था, आश्रय आश्रय भाव, मैंने बताया था या मेरी वीडियो में कहीं चैनल पे मिलेगा, आश्रय आश्रय भाव। आश्रय आश्रय भाव बेसिकली क्या होता है कि आपकी बॉडी में वात पित्त कफ है, तो वात पित्त कफ ये फंक्शनल यूनिट है, और इसके अलावा धातु और मल ये सब स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द फंक्शनल यूनिट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। जैसे आपकी बॉडी में कफ बढ़ता है, तो जब आपकी बॉडी में कफ बढ़ता है तो उससे रिलेटेड जो धातुएं हैं, जैसे रस धातु है, मांस धातु है, मेद धातु है, ये भी बढ़ती है। ठीक है। इन द सेम वे जब पित्त बढ़ता है तो क्या होगा, आपकी बॉडी में रक्त धातु बढ़ेगी तो पित्त भी बढ़ेगा। बट इन केस ऑफ वात एंड अस्थि, इन केस ऑफ वात एंड अस्थि देयर इज ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। मतलब जब आपकी बॉडी में वात बढ़ता है तो अस्थि घटती है, और अस्थि बढ़ती है तो वात घटता है। कैसे? क्योंकि हड्डियां तो एकदम कठोर है। जब हड्डियां खोखली हो जाएंगी, जब हड्डियां अंदर से खोखली हो जाएंगी, इसका मतलब उनके अंदर वात आ गया। जब वात बढ़ेगा तो हड्डियां खोखली हो जाएंगी, खोखली मतलब कमजोर हो जाएंगी। सो जो अस्थि व स्रोतस की जो ट्रीटमेंट है वो मधुर एवं तिक्त रसात्मक द्रव्यों से सिद्ध घी का प्रयोग या दूध का प्रयोग बस्ती के रूप में देना है या इंटरनल यूज के रूप में देना है। तो हमने पढ़ा अस्थि व स्रोतस। तो अस्थि व स्रोतस जब आएगा, सबसे पहले लिखना है मूल। तो अस्थि व स्रोतस के जो मूल होते हैं, मेदो मूलम जघनम च। तो अस्थि व स्रोतस के मूल मेद धातु, और जघन जघन मतलब इलियक रीजन। इसकी दुष्टि के कारण क्या है? व्यायाम, अति संक्षोभात, अति विघटनात्। तो व्यायाम मतलब एक्सेसिव एक्सरसाइज, अति संक्षोभात मतलब एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ द बोन्स, अति विघटनात् मतलब क्रशिंग। देन अलोंग विद दिस वातलानाम च सेवनात्, मतलब वातवर्धक आहार विहार के सेवन से। दूषित होने के कारण क्या मिलेंगे? अध्यस्थि, दंत, दंतास्थि, भेदसूल, विवर्णता। तो अध्यस्थि, अध्यस्थि मतलब एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ बोन्स, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ बोन्स मतलब excessive and abnormal growth of bone that can be compared with the osteomyeloma, that can be compared with the osteomyeloma. अधिदंत, अधिदंत मतलब excessive growth of teeth. then अस्थि, भेद, सूल, विवर्णता। सूल मतलब पेन, विवर्णता मतलब डिस्कलरेशन। केश, लोम, नख, श्मश्रु, दोषश्च अस्ति प्रदोषज। Along with this, there will be the pathology or abnormal condition of the case, लोम, नख, श्मश्रु। ट्रीटमेंट क्या है? तो मधुर एवं तिक्त रसात्मक औषधियों से सिद्ध दूध का प्रयोग या घी का प्रयोग, या तो इंटरनल रूप में मतलब पीने के लिए देना है, या फिर बस्ती के रूप में प्रयोग करना है। किसका? मधुर एवं तिक्त रसात्मक औषधियों से सिद्ध दूध या घी का प्रयोग, या तो ओरली या बस्ती के रूप में देना है। नेक्स्ट वी विल सी द अस्थि के मल। तो अस्थि के जो मल है, दैट इज किट्टम, केसम, लोम, अस्थनो। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू चरक। अकॉर्डिंग टू चरक जो अस्थि धातु के मल है वो केश, लोम, अस्थनो। तो केश, लोम, अस्थनो मतलब केश मतलब हेयर, लोम मतलब बॉडी हेयर। तो दीज आर द मल। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, श्यान, नख, रोम, च। तो नख मतलब नेल्स एंड रोम मतलब बॉडी हेयर। तो ये इसके मल हैं, किसके? अस्थि के। लॉजिक क्या है, मतलब मैं क्यों बता रहा हूँ, या इसमें जब आपने ये पढ़ा अस्थि क्षय या अस्थि वृद्धि, तो वृद्धि में तो ठीक था क्योंकि हड्डी बढ़ रही थी, इसलिए ऐसे सिम्टम्स मिल रहे थे, इसमें हड्डी बढ़ रही है, इट इज अध्यस्थि या अधिदंत। जो अस्थि क्षय वाले सिम्टम थे या अस्थि प्रदूषित विकार थे, उसमें केस और लोम का डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा है। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हमारे दिमाग में आ रहा है? तो जैसे क्या होता है कि जब हमें पता है कि आपकी बॉडी में, आपके सपोज हेयर्स में प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी हेयर्स में प्रॉब्लम है, आपके मुस्टैक और बियर्ड के हेयर में प्रॉब्लम है, तो आपके पास कोई पेशेंट आया एलोपेशिया का, गंजेपन का, कोई एलोपेशिया का पेशेंट आया, या फिर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया जिसकी स्कैल्प की जो हेयर है वो डिस्कलरेशन हो रहा है। तो हमने कहीं पढ़ रखा है फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी में कि जो बॉडी के हेयर्स हैं उनमें जब दोष आता है, सिम्टम में था ना कि
दोष, दोष मतलब एबनॉर्मल, चाहे वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कम बढ़ रहे हैं, या उनका एबनॉर्मल कलर हो रहा है, किसमें, नेल्स में, हेयर्स में, बॉडी हेयर्स में। तो हमने कहीं पढ़ रखा है कि जब भी कभी हेयर्स की ग्रोथ में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर हेयर्स के कलर्स में प्रॉब्लम हो रही है, या आपकी बॉडी के ज़्यादा हेयर गिर रहे हैं, तो इन केसेस में हमें क्या करना है, इस केसेस में जो हमारी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगी, जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा था, क्या पढ़ रखा था कि अस्थि के जो मल थे वो कौन थे, केस और लोम। तो जो हमने पढ़ रखा है कि वो अस्थि से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमारी जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगी, अगर हमें कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं पता, अगर हमें हेयर फॉल का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है क्या, कि वो अस्थि से रिलेटेड है, तो अगर किसी की बॉडी में अस्थि स्ट्रांग है, किसी की बॉडी में अस्थि सही से बन रही है, इसका मतलब उसकी बॉडी में हेयर फॉलिकल्स, हेयर्स और नेल्स, ये सब जो है वो अच्छे से बनने चाहिए। तो अगर सपोज कोई गंजेपन का केस है, मतलब एलोपेशिया का केस है, तो उसके केस में हम जो भी मेडिसिन देंगे, उसके साथ में हम एक मेडिसिन वो भी देंगे जो उसकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छी हो, मतलब कैल्शियम की प्रिपरेशन साथ में ऐड करेंगे, जिसकी वजह से उसकी बॉडी, हमारा आयुर्वेद का जो प्रिंसिपल है वो क्या है ट्रीटमेंट करने का, आयुर्वेद का प्रिंसिपल मॉडर्न के प्रिंसिपल से बिल्कुल डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है कि आयुर्वेद बोलता है कि अ, अ, हमारी जो कोई भी बीमारी जो बॉडी में होती है वो क्यों होती है, दोषों की वजह से। मॉडर्न क्या बोलता है, मॉडर्न जीवाणुवाद का सिद्धांत बोलता है, जिसे मैंने क्रियाकाल में पढ़ाया होगा कि दोषवाद एंड जीवाणुवाद। दोषवाद क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो भी डिसीज है, या हम हेल्दी स्टेटस में रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, जब वात पित्त कफ हेल्थ नॉर्मल अवस्था में रहते हैं, जब वात पित्त कफ की नॉर्मल अवस्था हैम्पर हो जाती है, तब हमारी बॉडी में डिसीज हो जाती है। इन द सेम में जीवाणुवाद क्या कहता है, हमारी बॉडी तो हेल्दी थी, लेकिन जब बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी पर अटैक करेगा, तभी हमारी बॉडी में डिसीज हो जाएगी। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दोषवाद एंड जीवाणुवाद अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न एंड अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेद। तो अब हम ये सब क्यों बोल रहे हैं, मतलब लॉजिक क्या है ये सब बोलने का। तो लॉजिक ये है कि अगर सपोज आपने पास ट्रीटमेंट के लिए कोई पेशेंट आया एलोपेशिया का, आपको उसका एबीसीडी नहीं आता, लेकिन आपने कहीं ये पढ़ रखा है कि जो केश है वो अस्थि धातु के मल है, अस्थि धातु से रिलेटेड है। तो हमारी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, आप साथ में कोई सा भी तेल दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ में आप एक ड्रग ऐसी जरूर देंगे जो बोन्स के लिए अच्छी हो। तो उससे क्या होगा, उससे जो आपको इफेक्ट मिलेगा वो ज़्यादा जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि जब अस्थि धातु का नरिशमेंट अच्छे से होगा तो उसके मल भी अच्छे से बनेंगे, जब अस्थि धातु का नरिशमेंट अच्छे से नहीं होगा तो उसके मल भी अच्छे से नहीं बनेंगे। ठीक है, समझ